Every time you log into your computer at work, access a shared folder, or send a document to the network printer, there's a hidden system watching your every move. It's a silent, ever-present gatekeeper, constantly deciding if you are who you say you are, and if you're allowed to do what you're trying to do. This system is the digital backbone for the overwhelming majority of the world's largest companies. It's the arbiter of trust, the enforcer of rules, and the single source of truth for the entire corporate network. For most people, it's completely invisible. A simple login box is the only clue that a massive, complex machine is working tirelessly in the background. But for anyone in IT, cybersecurity, or just curious about how modern corporations actually run, this system is everything. In this video, we're tearing down the wall between you and that system. We're going deep into the architecture and mechanics of the ultimate digital gatekeeper, Microsoft Active Directory. You'll learn not just what it is, but how it's built, how it thinks, and how it does its most important job, deciding in a fraction of a second who gets in and who stays out. By the end of this, typing your password will never feel the same again. The problem: a world before central control. To really get why Active Directory is such a big deal, we have to travel back in time to a much messier, more chaotic era of networking. Picture a small, growing business in the mid-90s. We'll call it Innovate Corporation. Innovate Corp starts with 5 employees. The IT admin, let's call her Jane, manages 5 computers. When a new employee, Bob, joins, Jane sets up his PC. She creates a local user account right on that machine. Bob sets a password. Simple enough. But when Bob needs the company's shared files, which live on a different computer, Jane has to create another account for Bob on that server, with another password. When they get a new network printer, Jane has to set up access for Bob on the printer itself. That's 3 resources, 3 separate accounts, and potentially 3 different passwords that Bob has to remember and Jane has to manage. Now, Innovate Corp gets successful. They start growing. A year later, they have 50 employees. Jane is now wrangling 50 computers, a dozen servers for different departments, and a whole fleet of printers. The company hires a new accountant, Sarah. Jane has to walk over to Sarah's specific computer to create her local account. Then, she has to log into the accounting server to make an account for Sarah there. Then the general file server. Then the HR server. Then she has to manually add Sarah to the permission list for 3 different printers. A week later, Sarah forgets her password. Which one? Her PC password? The accounting software password? The HR server password? She has no idea. Jane now has to go reset the password on multiple systems. Now, imagine this problem scaled up for 50 employees. It's a complete nightmare. It's not just inefficient, it's a security disaster. Every computer is an island. Every server is its own little kingdom with its own list of citizens and its own set of rules. There's no central authority. To remove an employee who's left the company, Jane has to hunt down every single account on every machine and server that person touched and disable them one by one. If she misses even one, that ex-employee could walk over to a colleague's desk and potentially access sensitive company data. This was the reality. A world of digital anarchy, held together by spreadsheets, sticky notes, and the sheer willpower of overworked IT admins. This chaos is the exact problem Active Directory was built to solve. It was designed to take those thousands of isolated islands and unite them into a single, manageable continent. Introducing the solution: Active Directory. In 2000, alongside Windows 2000 Server, Microsoft rolled out its answer to this chaos: Active Directory. At its core, Active Directory, or AD, is a centralized database and a set of services that connect users with the network resources they need to do their jobs. Think of it as a company's phone book, its HR department, and its security force all rolled into one. The database, the directory itself, lists every single user, computer, printer, server, and shared folder on your network. In AD lingo, these are all called objects, but it's so much more than a list. For each of those objects, AD stores detailed information, or attributes. For a user object, that's their name, job title, phone number, and most importantly, their password, or technically a secure hash of it. For a printer object, it could be its physical location and who's allowed to use it.
The services part of AD are the engines that use this database to control everything. The most important service is Active Directory Domain Services, or ADDS. This is the core engine that manages all the users and computers and lets administrators organize them into a logical hierarchy. The servers running ADDS are called domain controllers. They're the physical brains of the operation, the gatekeepers we talked about. So, back at Innovate Corp, instead of every computer being an island, they're all joined to a central Innovate Corp domain. When Sarah the accountant is hired, Jane doesn't touch her computer or any of the servers. She sits at her own desk, opens the Active Directory tools, and creates one single user account for Sarah in the central directory. From that single screen, Jane can define Sarah's entire digital life at the company. She sets her password. She adds her to a group called Accountants. And here's the magic. Because that accountants group has already been given permission to the accounting server and the finance printers, Sarah automatically gets all the access she needs. When Sarah logs into her computer, the PC doesn't check a local list anymore. It reaches out to a domain controller and asks, "Hey, someone named Sarah is trying to log in. Is she legit?" The domain controller checks its central database, verifies her password, and says, "Yep, she is. Let her in." From then on, every time Sarah tries to open a file on the accounting server, that server checks back with the domain controller to make sure she has permission. This is the power of centralization. One user, one identity, one password that unlocks all the resources they're allowed to use. It transforms chaos into order. It's why Active Directory became the bedrock of corporate IT for the next 2 decades and beyond. The big picture, the AD hierarchy. To manage a whole organization, from a small business to a global megacorp, Active Directory needs a way to organize everything. It can't just be one giant flat list. To solve this, AD uses a logical structure that's brilliant, but maybe a little confusing at first. The key is understanding the different levels: forests, trees, domains, and organizational units. Let's use an analogy. Imagine a massive global conglomerate called Global Tech Incorporated. The forest. At the very top is the forest. The forest is the entire organization, the absolute boundary of everything. For Global Tech Inc., the globaltech.com forest is the whole company. Every single user, computer, and resource belonging to Global Tech lives inside this forest. It's the ultimate security wall. By default, a user in one forest can't access anything in another. It's a digital fortress. The tree. Inside a forest, you can have one or more trees. A tree is a collection of one or more domains that share a contiguous namespace. Let's say Global Tech acquires a major subsidiary in Europe called Eurosystems. They could make eurosystems.com a separate domain. But what if they open a new branch in Asia? They could create asia.globaltech.com as another domain. Because asia.globaltech.com shares the globaltech.com root name, it forms a tree structure with the parent domain. Eurosystems.com, with its different name, would be a separate tree living happily inside the same forest. The big takeaway is that all domains within a single forest automatically trust each other. This transitive trust means a user in the Asia domain could, with the right permissions, use a printer in the main US domain without needing a separate login. The domain. The most fundamental building block is the domain. A domain is a group of network objects, users, computers, printers, that all share the same AD database. In our example, globaltech.com is a domain. It's the primary boundary for administration and applying rules. Every domain needs at least one, and preferably more, domain controllers. These are the servers holding a copy of that domain's database and handling all the login requests. When you log into your work computer, you're authenticating against a domain controller for your specific domain. A company might have multiple domains for a few reasons. Geography, they might have a us.globaltech.com domain and an emea.globaltech.com domain to keep network traffic local and apply different regional policies. Administration. Maybe they want a totally separate IT team to manage a specific division, so they give it its own domain. Security. A top-secret research division could be isolated in its own domain with much stricter password and access policies than the rest of the company. Organizational units, OUs.
While all that is the macro structure, the real day-to-day work happens inside organizational units, or OUs. An OU is just a container within a domain that you use to organize objects. Think of them like folders and subfolders for your network. They are the secret weapon for taming complexity. Inside the us.globaltech.com domain, our admin, Jane, wouldn't just dump all 5,000 US employees into one giant list. She'd create a structure of OUs. She might create top-level OUs for sales, marketing, engineering, and finance. Inside the sales OU, she could create sub-OUs for North America sales and South America sales. Inside that, she could have OUs for sales managers, sales associates, and even computer OUs like sales laptops. Why bother with all this? Because OUs are where you apply specific policies and delegate control. This is one of AD's most powerful features. Jane can apply a policy to the sales OU that automatically maps a network drive to the sales folder. Everyone in that OU and its sub-OUs gets that drive. She can then apply a more specific policy just to the sales associates OU that blocks access to the control panel, while the sales managers are not restricted. This allows for incredibly fine-grained control. If the head of marketing wants to reset passwords for his own team, Jane doesn't give him control of the whole domain. She can delegate control to him for just the marketing OU. He can manage his own people without being able to touch anyone in finance or engineering. This whole structure, forests for security, trees for organization, domains for administration, and OUs for granular control, is what lets Active Directory scale from a 20-person business to a 500,000 employee enterprise, all within one logical system. The gatekeepers, domain controllers. So we've got the logical blueprint. Now let's talk about the physical engines that make it all run. These are the unsung heroes of the network, the powerful servers known as domain controllers, or DCs. A domain controller is simply a Windows server with the Active Directory Domain Services ADDS role installed. It's the brain and the muscle of a domain. You literally can't have a domain without at least one DC. Its job is complex and absolutely critical. First and foremost, a DC holds a copy of the Active Directory database. This file, technically called ntds.dit, is the crown jewels. It contains every object, every user, every password hash, and every group in the domain. It is the master record. Because this database is so critical, you never, ever have just one domain controller. Any real business will have at least two, and often many more. The reason is simple: redundancy and load balancing. If Jane resets a password on DC1, that change is automatically replicated to all other DCs in the domain. This multi-master replication keeps the directory consistent everywhere. It also means that if DC1 crashes or is taken offline for maintenance, the other DCs just pick up the slack. Users can still log in, access files, and the network keeps running without a hiccup. The main jobs of a domain controller really boil down to three things. Authentication. This is its most famous job. When you try to log in, the DC is responsible for checking your credentials against the database and giving a yes or no. We'll get into exactly how it does this next. Authorization. Once you're in, the DC's job isn't done. It also helps with authorization, deciding what you're allowed to do. When you try to open a file, the file server can ask the DC to check your group memberships to see if you have permission. Policy enforcement. As we saw with OUs, DCs are responsible for dishing out policies. These rules, called Group Policy Objects, GPOS, dictate everything from your desktop wallpaper to complex security settings. When you log in, your computer talks to a DC to pull down all the relevant policies and applies them. There's one more special job a DC can have: being a global catalog, GC. In a big forest with multiple domains, how do you find someone in a different domain? Searching every domain one by one would be painfully slow. The global catalog solves this. A DC that's also a GC holds a full copy of its own domain's database, plus a partial, read-only copy of every other domain in the forest. This partial copy has just enough info for searching, like usernames and email addresses. So when you search the company address book, you're almost certainly talking to a global catalog server. Because domain controllers hold the keys to the entire kingdom, they are the most critical servers on any network. Securing them is job number one. Attackers who get control of a DC have basically won. They own the network.
This is why they're kept in secure server rooms, protected by firewalls and managed with extreme care. They are the digital gatekeepers. How it really works: authentication and authorization. Okay, we've covered the what and the why. Now for the main event, the how. When you type in your password and hit enter, what is actually happening to get you in? The process is a masterpiece of cryptography and networking, designed to be both secure and fast. The star of the show is an authentication protocol called Kerberos. Its main goal is to prove your identity without ever sending your actual password across the network. To get Kerberos, you just need to know the three main players: the client, your computer; the server, the resource you want to access, like a file server; the key distribution center, KDC, the trusted middleman. In Active Directory, the KDC service runs on every domain controller. The KDC itself has two parts: the authentication server, AS, and the ticket granting server, TGS. Think of the AS as the main gate of an amusement park where you first show your ID. The TGS is like the individual ride operator who gives you a specific ticket for each ride. Let's walk through the Kerberos handshake. Step 1. The AS request. You enter your username and password. Your computer doesn't send the password. Instead, it converts your password into a cryptographic key and uses it to encrypt the current time. It sends your username in plain text, plus this encrypted timestamp, to the authentication server, AS, on a domain controller. The message is basically, "Hi, I'm Bob. Here's proof I know Bob's password." Step 2. The AS reply and the ticket granting ticket, TGT. The AS looks up Bob in Active Directory and finds its own copy of your password's key. It uses that key to try and decrypt the timestamp you sent. If it works, and the time is recent, to prevent old stolen requests from being reused, the AS knows you have the right password. You've been authenticated, and your password never crossed the network. The AS now generates a special ticket called the Ticket Granting Ticket, TGT. This is your master pass for the day. This TGT is then encrypted with a secret key that only the ticket granting server, TGS, knows. The AS sends this encrypted TGT back to your computer, along with a session key for this login, which is encrypted using your password key. Step 3. The TGS request. Your computer gets the reply. It uses your password key to decrypt the session key. It now has two things in memory: the TGT, which it can't read, and the session key. You are now officially logged into the domain. So, let's say you try to open a file on a server named FILESRV01. Your computer knows it needs another ticket for this. It creates a message for the ticket granting server, TGS, containing the TGT, the name of the server you want to access, and an authenticator message that it encrypts with the session key. Step 4. The TGS reply and the service ticket. The TGS gets the request. It decrypts the TGT with its own secret key to check it. Then it uses the session key, which it finds inside the TGT, to decrypt your authenticator. If everything checks out, the TGS is convinced you're legit. The TGS then issues a new specific ticket called a service ticket, just for accessing FILESRV01. This ticket is encrypted with the file server's secret key, which the server and the TGS both know. It sends this service ticket back to your computer. Step 5. Accessing the server. Your computer finally presents this service ticket to FILESRV01. The file server uses its own secret key to decrypt the ticket. If it works, it trusts that the ticket came from the TGS and that you are who you say you are. Access granted. This sounds incredibly complicated, but it happens in milliseconds. And the best part is, this process enables single sign-on, SSO. Once you have that first TGT, your computer can silently get new service tickets for your email server, internal websites, and databases, all without you ever typing your password again. Finally, remember the difference between authentication, proving who you are, and authorization, what you're allowed to do. Kerberos handles authentication. Once the file server knows it's you, it still has to check its access control list, or ACL, to see if your username or a group you're in, like accountants, has permission to open that folder. If yes, the folder opens. If not, you get that access denied message we all know and love. The power of centralization, why it matters. Okay,
let's zoom back out. We've seen how AD brings order and how Kerberos provides secure logins. But the real power of Active Directory is in managing the entire environment from one place. The main tool for this is Group Policy. A Group Policy Object, GPO, is just a collection of settings that an admin can apply to users and computers. This is where those OUs we talked about become so critical. GPOs are linked to sites, domains, or most often, OUs. Back at Innovate Corp, Jane can create a GPO called Standard Desktop Settings and link it to the OU containing all employee computers. In that one GPO, she can configure hundreds of settings. Security, enforce complex passwords that expire every 90 days. Block USB drives to stop data leaks. Configure the Windows firewall on every single machine. Software, automatically deploy Microsoft Office to every computer. When a new version comes out, she just updates the GPO and everyone gets the upgrade. User environment, set the corporate logo as everyone's wallpaper. Automatically map the shared and department network drives so they just appear. Add the right printers automatically. When a computer starts up or a user logs in, it asks a domain controller, "What rules apply to me?" The DC looks at the user's and computer's OU, sends down all the linked GPOs, and the computer obediently configures itself. This is a complete game changer for IT. Instead of Jane running to 500 different computers to install software, she does it once, in one place. It guarantees consistency, boosts security, and saves an incredible amount of time, allowing a small IT team to manage a huge number of computers. This centralization is also what makes single sign-on possible. Because your one identity is trusted by a central authority, that trust can be extended to countless apps on the network. You log in once to Windows, and you're in. That seamless experience is a direct result of the trust model Active Directory provides. The true value is right in the name. It's an Active Directory. It's not a static list, it's a dynamic framework for command and control over the entire network. CTA. By the way, if you're getting value from this deep dive, do me a favor and hit that like button. It really helps the channel. And if you want more breakdowns of complex tech like this, make sure you subscribe so you don't miss what's next. The Active Directory family and its cloud evolution. While AD Domain Services is the king of on-premises networks, it's part of a larger family, and it has a modern, cloud-native cousin that's shaping the future of identity. Microsoft built a few other services around the core AD framework. Active Directory Certificate Services, ADCS, lets a company act as its own certificate authority to issue digital certificates for securing websites and encrypting files. Active Directory Federation Services, ADFS, helps extend your identity outside the company walls. It's what lets you use your work login to access a third-party app by creating a trust between the app and your company's AD. Active Directory Lightweight Directory Services, ADLDS, a stripped-down version of AD that applications can use without needing a full-blown domain. But the biggest change in the world of identity is the cloud. As companies adopted services like Microsoft 365, a new problem appeared. Traditional AD was built to manage things inside the corporate firewall, not for the internet-first world. To solve this, Microsoft created Azure Active Directory, recently renamed to Microsoft Entra ID. Now, here's a critical point. Entra ID is not just Active Directory running on a cloud server. It is a completely separate modern identity platform built from the ground up for the cloud. While traditional AD speaks Kerberos, Entra ID speaks modern web protocols like SAML and OAuth 2.0. While AD manages domain-joined Windows computers, Entra ID manages user identities for accessing cloud apps from any device, anywhere. It's the identity service for all of Microsoft's cloud, including Microsoft 365 and Azure. Today, most organizations live in a hybrid environment. They use a tool called Microsoft Entra Connect to synchronize their on-premises AD users up to Microsoft Entra ID. This gives them the best of both worlds. They can keep using traditional AD for their internal servers and computers, while giving users a single identity that works for both local resources and cloud apps. A user can log into their laptop with their AD password, and then seamlessly access Salesforce or Teams using that same identity, often secured by multi-factor authentication, MFA, managed by Entra ID. Understanding this difference is key for any IT pro today.
ADDS is still the king of the on-premises kingdom, but Microsoft Entra ID is the future of identity, built for a world without network perimeters. Conclusion. So, let's bring it all home. We've seen that Active Directory was born to bring order to the chaos of early networks. It replaced digital anarchy with a centralized structure of forests, trees, domains, and OUs, creating a single source of truth for an entire company. We've met the silent sentinels of the network, the domain controllers that act as gatekeepers, authenticating users with the elegant dance of Kerberos, which secures your identity without ever putting your password at risk. And finally, we've seen how this central control, through the power of group policy, allows IT to manage thousands of systems from one screen, and how that legacy is evolving with its cloud successor, Microsoft Entra ID, to meet the challenges of the modern world. The next time you log in at work, just for a second, appreciate the incredible complexity working for you. That simple login box is the tip of a massive iceberg, a gateway to a hidden world of digital trust, policy, and control. It's not just a system, it's the foundation of the modern corporate network. It is Active Directory. Thank you for joining me on this deep dive. If you want to keep exploring the core components of IT, be sure to subscribe and hit the bell icon so you're notified when we release our next video. Until then, stay curious. अगर ऐसा है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपका ये सारा डर निकल जाएगा। आज हम इस मुश्किल लगने वाले काम को आसान करने लायक स्टेप्स में तोड़ देंगे। मैं आपको बिना किसी कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज के ज़ीरो से एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। हम एक एक करके साथ मिलकर एक ऐसा स्टोर बनाएंगे जो न सिर्फ दिखने में अच्छा होगा, बल्कि बिक्री के लिए भी एकदम तैयार होगा। मैं कई सालों से ई-कॉमर्स की दुनिया में हूँ और मैंने बहुत से सफल शॉपिफाई स्टोर बनाए हैं। मुझे पता है कि नए लोग क्या गलतियाँ करते हैं और मैं आपको उन गलतियों से बचाने में मदद करूँगी। तो आराम से बैठ जाइए, एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपने ऑनलाइन बिजनेस एम्पायर को बनाने के पहले और सबसे ज़रूरी कदम के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अगले 45 मिनटों में हम उस सपने को हकीकत में बदल देंगे। मैं आपको शॉपिफाई पर साइन अप करने से लेकर अपने स्टोर को खूबसूरती से डिज़ाइन करने, प्रोडक्ट जोड़ने, पेमेंट और शिपिंग सेट करने और आखिर में अपने स्टोर को दुनिया के लिए लॉन्च करने तक हर एक कदम पर आपका हाथ पकड़ DH कर गाइड करूंगी। आपको किसी डेवलपर को हज़ारों रुपये देने की ज़रूरत नहीं है और न ही महीनों तक कुछ सीखने की। आप आज ही इसी वीडियो को देखते देखते अपना स्टोर बना सकती हैं। जब यह वीडियो ख़त्म होगा, आपके पास एक चालू ऑनलाइन स्टोर होगा जो बिक्री के लिए तैयार है। यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। सेक्शन 1, द फाउंडेशन, शॉपिफाई साइन अप एंड फर्स्ट स्टेप्स। किसी भी बड़ी इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए और हमारे ऑनलाइन स्टोर के लिए वो नींव है शॉपिफाई पर सही शुरुआत करना। ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और मैं आपको हर स्टेप पर गाइड करूंगी। सबसे पहले शॉपिफाई पर साइन अप करना है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक दिया है जिस पर क्लिक करने पर आपको शॉपिफाई का एक खास ऑफर मिलता है। आमतौर पर शॉपिफाई एक फ्री ट्रायल देता है, लेकिन इस लिंक से आपको एक बढ़िया शुरुआती ऑफर मिल सकता है। जैसे शॉपिफाई अक्सर 3 दिन का फ्री ट्रायल देता है, जिसके बाद आप अगले 3 महीने के लिए सिर्फ 20 रुपये प्रति माह का प्लान चुन सकती हैं। यह आपको बिना किसी बड़े खर्चे के अपना स्टोर सेटअप करने और चलाने के लिए काफ़ी समय देता है। तो आगे बढ़ें और उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप शॉपिफाई के साइन अप पेज पर पहुंचेंगी। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डालें और स्टार्ट फ्री ट्रायल पर क्लिक करें। शॉपिफाई आपसे कुछ आसान सवाल पूछ सकता है, जैसे कि आप क्या बेचना चाहती हैं। आप इनका जवाब दे सकती हैं या स्किप ऑन करके आगे बढ़ सकती हैं। इसके बाद आपको अपने स्टोर के लिए एक नाम चुनना होगा। यह एक ज़रूरी कदम है, लेकिन इस पर ज़्यादा सोचकर परेशान न हो। आप इसे बाद में कभी भी बदल सकती हैं। एक ऐसा नाम चुनें जो आपके ब्रांड से मिलता जुलता हो। शॉपिफाई आपके लिए अपने आप एक .myshopify.com URL बना देगा। जैसे अगर आप माई अवेसम स्टोर चुनती हैं तो आपका URL myawesomestore.myshopify.com होगा। बाद में हम एक कस्टम डोमेन जैसे www.myawesomestore.com
http://www.myavesomestore.com कैसे जोड़ें, इस पर भी बात करेंगे। एक बार जब आप अपना नाम चुन लेती हैं तो आपको शॉपिफाई एडमिन डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। यह आपके ऑनलाइन स्टोर का कंट्रोल सेंटर है। यहीं से आप सब कुछ मैनेज करेंगी, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर, ग्राहक और स्टोर का डिज़ाइन। पहली बार में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम इसे एक एक करके समझेंगे। पहला काम जो हमें करना है वो है अपना प्लान एक्टिवेट करना, ताकि हम 20 रुपये प्रति माह वाले ऑफर का फ़ायदा उठा सकें। अपने डैशबोर्ड पर आपको सेलेक्ट एक प्लान का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। शॉपिफाई अलग अलग प्लान्स देता है, जैसे कि स्टार्टर, बेसिक, शॉपिफाई और एडवांस्ड। एक स्टार्टर के तौर पर बेसिक प्लान आपके लिए बिल्कुल सही है। यह आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट जोड़ने, एक सुंदर ऑनलाइन स्टोर बनाने और आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए सभी ज़रूरी फीचर्स देता है। एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, 20 रुपये प्रति माह का ऑफर पहले 3 महीनों के लिए है। उसके बाद बेसिक प्लान की कीमत फ़िलहाल 1499 रुपये प्रति माह है। अगर आपका बजट कम है तो आप 399 रुपये प्रति माह वाला स्टार्टर प्लान भी देख सकती हैं, लेकिन उसमें फीचर्स थोड़ा ही कम होते हैं। तो बेसिक प्लान चुनें और अपनी बिलिंग जानकारी भरें। इससे यह पक्का हो जाएगा कि आपका स्टोर ट्रायल खत्म होने के बाद भी चलता रहे। प्लान चुनने के बाद चलिए कुछ बेसिक लेकिन ज़रूरी सेटिंग्स को ठीक करते हैं। अपने शॉपिफाई एडमिन में नीचे बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें। सबसे पहले स्टोर डिटेल्स पर जाएं। यहाँ पक्का करें कि आपके स्टोर का नाम सही है। आप अपना स्टोर कॉन्टैक्ट ईमेल और सेंडर ईमेल डाल सकती हैं। यह वो ईमेल पता है जिसे शॉपिफाई और आपके ग्राहक आपसे संपर्क करेंगे। सबसे ज़रूरी, नीचे स्क्रॉल करें और स्टोर करेंसी सेक्शन पर जाएं। एक बात का खास ध्यान रखें कि यह इंडियन रुपया INR पर सेट हो। यह बहुत ज़रूरी है ताकि आपके ग्राहक भारतीय रुपये में कीमतें देख सकें और आपको पेमेंट भी भारतीय रुपये में मिले। इसे सेट करने के बाद सेव पर क्लिक करना न भूलें। बधाई हो, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर की नींव रख दी है। देखा कितना आसान था। आपने साइन अप कर लिया है, एक प्लान चुन लिया है और अपनी बेसिक सेटिंग्स भी कर ली हैं। अब आता है मज़ेदार हिस्सा, अपने स्टोर को एक खाली कैनवास से एक सुंदर प्रोफेशनल ऑनलाइन दुकान में बदलना। सेक्शन 2, डिज़ाइनिंग योर स्टोर, द विजुअल आइडेंटिटी। अब जब हमारी नींव तैयार है तो अब वक्त है अपने स्टोर को एक पहचान देने का। एक ऐसा लुक जो आपके ब्रांड को दिखाए और कस्टमर्स को अपनी ओर खींचे। यहाँ हम थीम और कस्टमाइजेशन की दुनिया में जाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए एक लाइन का कोड भी नहीं लिखना है। शॉपिफाई में आपके स्टोर का डिज़ाइन एक थीम से कंट्रोल होता है। थीम आपके स्टोर के लेआउट, रंग, फॉन्ट और ओवरऑल फील के लिए एक टेम्पलेट की तरह है। शॉपिफाई के थीम स्टोर में सैकड़ों फ्री और पेड थीम हैं। पेड थीम में अक्सर ज़्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन एक बिगिनर के तौर पर मैं आपको फ्री थीम से शुरू करने की सलाह दूंगी। शॉपिफाई की अपनी फ्री थीम बहुत पावरफुल, तेज़ और मोबाइल फ्रेंडली होती हैं, जिसका मतलब है कि वे फ़ोन, टैबलेट और डेस्कटॉप पर शानदार दिखती हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम शॉपिफाई की सबसे पॉपुलर फ्री थीम डॉन का इस्तेमाल करेंगे। यह एक साफ सुथरी, सिंपल और बहुत लचीली थीम है जो किसी भी तरह के प्रोडक्ट के लिए परफेक्ट है। जब आप पहली बार अपना स्टोर बनाती हैं तो डॉन थीम आमतौर पर पहले से इंस्टॉल होती है। यह देखने के लिए अपने शॉपिफाई एडमिन में ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और आपको थीम्स सेक्शन में अपनी करंट थीम दिख जाएगी। अब असली जादू शुरू होता है। अपनी थीम के आगे कस्टमाइज बटन पर क्लिक करें। यह आपको शॉपिफाई के थीम एडिटर में ले जाएगा। इसे अपना विजुअल प्लेग्राउंड समझिए। बाईं ओर आपके होम पेज को बनाने वाले सभी सेक्शंस की लिस्ट है। बीच में आपको अपने स्टोर का लाइव प्रीव्यू दिखता है और दाईं ओर आपके पास चुने हुए सेक्शन के लिए सेटिंग्स हैं। आइए ऊपर से शुरू करें और नीचे की ओर काम करें। एक हेडर। यह आपके स्टोर का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहां आपका लोगो और मेनू होता है। बाईं ओर के पैनल में हेडर पर क्लिक करें। यहाँ आप अपना लोगो अपलोड कर सकती हैं। मैं कैनवा जैसे फ्री टूल का इस्तेमाल करके एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाने की सलाह दूंगी। ये प्रोफेशनल दिखता है
और शुरुआत के लिए काफ़ी है। लोगो अपलोड करने के बाद आप उसकी चौड़ाई को एडजस्ट कर सकती हैं ताकि वह सही दिखे। हेडर के ठीक ऊपर अनाउंसमेंट बार है। यह एक छोटी सी पट्टी है जहां आप प्रमोशन दिखा सकती हैं, जैसे 500 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर पर फ्री शिपिंग या समर सेल लाइव। आप आसानी से टेक्स्ट को एडिट कर सकती हैं। दूसरा, होम पेज सेक्शंस। होम पेज सेक्शंस। आपका होम पेज आपके स्टोर का वर्चुअल दरवाज़ा है। हमें इसे आकर्षक और नेविगेट करने में आसान बनाना होगा। डॉन थीम कई बने बनाए सेक्शंस के साथ आती है जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकती हैं, एडिट कर सकती हैं या हटा सकती हैं। इमेज बैनर, यह आपके होम पेज का पहला सेक्शन होता है। यहाँ एक बड़ी आकर्षक इमेज के साथ अपने ब्रांड या किसी खास प्रोडक्ट को दिखाएं। एक दमदार हेडलाइन लिखें जो विजिटर का ध्यान खींचे, जैसे हैंडक्राफ्टेड लेदर गुड्स। नीचे एक कॉल टू एक्शन बटन है। आप इस बटन का टेक्स्ट बदल सकती हैं, जैसे शॉप नाउ, और इसे अपने प्रोडक्ट्स के पेज से लिंक कर सकती हैं। फीचर्ड कलेक्शन, यह सेक्शन आपके किसी एक प्रोडक्ट कलेक्शन को दिखाता है। जब हम प्रोडक्ट जोड़ लेंगे तो आप यहाँ वापस आकर अपना सबसे पॉपुलर कलेक्शन चुन सकती हैं, जैसे बेस्ट सेलर्स। मल्टी कॉलम, और ये सेक्शन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप इसका इस्तेमाल उन खासियतों को बताने के लिए कर सकती हैं जो आपके स्टोर को दूसरों से अलग बनाती हैं। जैसे आप 3 कॉलम बना सकती हैं। पहला, फ्री शिपिंग के लिए एक ट्रक आइकन के साथ। दूसरा, सिक्योर पेमेंट्स के लिए एक लॉक आइकन के साथ। और तीसरा, आसान रिटर्न के लिए एक एरो आइकन के साथ। यह ग्राहकों में तुरंत भरोसा पैदा करता है। आप बाईं ओर के पैनल में इन सेक्शंस को खींचकर और छोड़कर आसानी से रीअरेंज कर सकती हैं। अगर कोई सेक्शन नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक करें और रिमूव सेक्शन पर क्लिक कर दें। तीसरा, फुटर। यह आपके स्टोर का सबसे निचला हिस्सा है। यह आपकी कॉन्टैक्ट जानकारी, रिटर्न पॉलिसी और सर्विस की शर्तों जैसे ज़रूरी लिंक्स के लिए है। हम इन पेजों को बाद में बनाएंगे। चौथी, थीम सेटिंग्स। यहाँ से आप अपने स्टोर के ओवरऑल विजुअल स्टाइल को कंट्रोल करती हैं। एडिटर में बाईं ओर गियर आइकन, थीम सेटिंग्स पर क्लिक करें। कलर्स, यहाँ आप अपने स्टोर की कलर स्कीम बदल सकती हैं। अपने लोगो से मिलते जुलते रंग चुनें। जब आपके रंग एक जैसे होते हैं तो आपका स्टोर अपने आप प्रोफेशनल लगने लगता है। टाइपोग्राफी, यहाँ आप अपने स्टोर के लिए फ़ॉन्ट चुन सकती हैं। एक साफ और पढ़ने में आसान फ़ॉन्ट चुनें। सोशल मीडिया, यहाँ आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर प्रोफाइल के लिंक पेस्ट कर सकती हैं। ये आइकन अपने आप आपके फुटर में दिखने लगेंगे। जैसे ही आप बदलाव करें, ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करना याद रखें। एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। अलग अलग सेक्शन, रंग और फ़ॉन्ट के साथ खेलें जब तक आपको एक ऐसा लुक न मिल जाए जो आपको पसंद हो। और बस, आपने अपने शॉपिफाई स्टोर को सफलतापूर्वक डिज़ाइन कर लिया है। अब हमारे पास एक सुंदर दिखने वाला स्टोर है, लेकिन यह अभी भी खाली है। अब सबसे ज़रूरी कदम का समय है, हमारे प्रोडक्ट्स को जोड़ना। सेक्शन 3, एडिंग योर प्रोडक्ट्स, द हार्ट ऑफ योर स्टोर। एक सुंदर स्टोर बहुत अच्छा है, लेकिन बिना प्रोडक्ट्स के यह सिर्फ एक खाली दुकान है। प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस का दिल है, और शॉपिफाई इन्हें जोड़ना और मैनेज करना अविश्वसनीय रूप से आसान बनाता है। इस सेक्शन में हम मैन्युअल रूप से एक प्रोडक्ट जोड़ने के पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे। अपने शॉपिफाई एडमिन पर वापस जाएं और बाईं ओर के मेनू में प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। आपको एक बड़ा हरा ऐड प्रोडक्ट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब आप ऐड प्रोडक्ट पेज पर हैं। आइए हर सेक्शन को एक एक करके देखें। 1, शीर्षक। यह आपके प्रोडक्ट का नाम है। इसे सरल और वर्णनात्मक रखें। सोचें कि एक ग्राहक इसे खोजने के लिए क्या सर्च करेगा। उदाहरण के लिए, ब्लू कॉटन टी शर्ट कूल ब्लू टॉप से बेहतर है। दूसरा, विवरण। यह वो जगह है जहां आप अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। सिर्फ फीचर्स मत गिनाइए, फ़ायदों के बारे में बात करें। यह प्रोडक्ट ग्राहक की लाइफ को कैसे बेहतर बनाएगा। एक कहानी बताएं। पढ़ने में आसान बनाने के लिए पैराग्राफ, बोल्ड टेक्स्ट और बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें।
एक अच्छा विवरण ग्राहक का भरोसा बढ़ा सकता है और उन्हें खरीदने के लिए मना सकता है। तीसरी, मीडिया। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट की तस्वीरें और वीडियो अपलोड करती हैं। यह यकीनन सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ग्राहक आपके प्रोडक्ट को छू नहीं सकते, इसलिए आपकी तस्वीरें वो काम करती हैं। कई हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें अपलोड करें, अलग अलग एंगल से तस्वीरें दिखाएं। चौथा, प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण। प्राइस, यह वो कीमत है जिस पर आप प्रोडक्ट बेच रही हैं। कंपेयर एट प्राइस, यह ऑप्शनल है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल पर दिखाना चाहती हैं तो आप यहाँ ओरिजिनल कीमत डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप प्राइस में 799 रुपये और कंपेयर एट प्राइस में 999 रुपये डालती हैं तो प्रोडक्ट पेज पर 799 रुपये के साथ 999 रुपये कटा हुआ दिखाई देगा। ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो ग्राहकों को तुरंत दिखाती है कि उन्हें एक अच्छी डील मिल रही है और इससे बिक्री के चांस बारेच जाते हैं। कॉस्ट पर आइटम, यह भी ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसे भरने की सलाह दूंगी। यहाँ आप वो लागत डालती हैं जो आपको प्रोडक्ट खरीदने में लगी। यह जानकारी ग्राहकों को नहीं दिखती, लेकिन शॉपिफाई इसका इस्तेमाल आपके प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए करेगा। पांचवा, इन्वेंट्री, ट्रैक क्वांटिटी। इस बॉक्स को चेक करना पक्का करें। इससे शॉपिफाई अपने आप आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा। जब कोई प्रोडक्ट बिकता है तो स्टॉक अपने आप कम हो जाएगा। क्वांटिटी, यहाँ आप डालें कि आपके पास इस प्रोडक्ट की कितनी यूनिट्स स्टॉक में हैं। छठा, शिपिंग। यह एक शारीरिक उत्पाद है। पक्का करें कि यह बॉक्स चेक किया हुआ है। वेट, अपने प्रोडक्ट का वजन डालें। यह शिपिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है। सातवां, वेरिएंट। यह एक बहुत ही पावरफुल फीचर है। अगर आपका प्रोडक्ट अलग अलग ऑप्शन में आता है, जैसे साइज या रंग, तो आप यहाँ वेरिएंट्स जोड़ सकती हैं। ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर। बॉक्स को चेक करें। विकल्प नाम में आकार टाइप करें। ऑप्शन वैल्यूज में हर साइज को कॉमा से अलग करके डालें, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। फिर एक और विकल्प जोड़ें पर क्लिक करें और रंग के लिए भी ऐसा ही करें। शॉपिफाई हर कॉम्बिनेशन, जैसे स्मॉल, ब्लूज के लिए एक लिस्ट बना देगा, जहां आप हर एक के लिए कीमत और मात्रा को एडजस्ट कर सकती हैं। एक बार जब आप सभी जानकारी भर लें तो ऊपर स्टेटस को एक्टिव पर सेट करें और फिर सेव पर क्लिक करें। बधाई हो, आपने अपना पहला प्रोडक्ट सफलतापूर्वक जोड़ लिया है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप लॉन्च करने से पहले कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए इस प्रोसेस को दोहराएं। संग्रह बनाना, क्रिएटिंग कलेक्शंस। अब जब आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो हमें उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। यहीं पर कलेक्शंस काम आते हैं। कलेक्शंस प्रोडक्ट्स के ग्रुप होते हैं, जैसे पुरुषों के कपड़े, टी शर्ट या सेल पर मौजूद आइटम। यह ग्राहकों के लिए आपके स्टोर को ब्राउज करना और जो वे ढूंढ रहे हैं उसे ढूंढना बहुत आसान बनाता है। प्रोडक्ट्स के तहत कलेक्शंस पर जाएं और क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करें। आप 2 तरह के कलेक्शन बना सकती हैं। मैन्युअल, आप खुद प्रोडक्ट चुनती हैं, या ऑटोमेटेड, आप शर्तें सेट करती हैं, जैसे प्रोडक्ट टाइप टी शर्ट हो। ऑटोमेटेड सबसे पावरफुल ऑप्शन है। अपने सभी प्रोडक्ट्स को लॉजिकल कलेक्शंस में व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय निकालें। यह न केवल यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपको अपने होम पेज पर खास कलेक्शंस दिखाने की भी सुविधा देता है। अब हमारा स्टोर आकार ले रहा है। हमारे पास एक सुंदर डिज़ाइन और प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन लॉन्च करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। कानूनी पेज बनाना, पेमेंट लेना और शिपिंग सेट करना। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 4, द एसेंशियल्स, लीगल, पेमेंट्स एंड शिपिंग। अब जब आपका स्टोर सुंदर दिख रहा है और प्रोडक्ट से भरा है, तो हमें यह पक्का करना होगा कि यह एक असली बिजनेस की तरह काम करे। इस सेक्शन में हम 3 ज़रूरी चीज़ें सेटअप करेंगे: लीगल पेज, पेमेंट गेटवे और शिपिंग रेट्स। ये पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, लेकिन आपके स्टोर को सुचारू रूप से चलाने और ग्राहकों का विश्वास बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। 1. ज़रूरी पेज बनाना, क्रिएटिंग एसेंशियल पेजेस। हर प्रोफेशनल ऑनलाइन स्टोर में कुछ स्टैंडर्ड लीगल पेज होने चाहिए। ये पेज न केवल आपको कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं,
बल्कि ग्राहकों को यह भी दिखाते हैं कि आप एक भरोसेमंद बिजनेस हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, शॉपिफाई ने इसे बहुत आसान बना दिया है। अपने शॉपिफाई एडमिन में सेटिंग्स पर जाएं और फिर पॉलिसीज़ पर क्लिक करें। आपको रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए बॉक्स दिखेंगे। हर बॉक्स के लिए क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट बटन पर क्लिक करें। शॉपिफाई अपने आप आपके स्टोर की जानकारी के साथ एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना देगा। इन टेम्पलेट्स को ध्यान से पढ़ें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करें। फिर सेव पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन स्टोर पेजेस पर जाकर इन पॉलिसीज़ के लिए अलग अलग पेज बनाएं। बस पॉलिसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करें। इसके अलावा अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना भी एक अच्छा आइडिया है। नेविगेशन पेज बनाने के बाद ऑनलाइन स्टोर नेविगेशन पर जाएं। अपने फुटर मेन्यू में इन सभी पेजों पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट के लिंक जोड़ें ताकि ग्राहक उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। दूसरा पेमेंट गेटवेज इंडिया फोकस। अब पैसे की बात करते हैं। ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए आपको एक पेमेंट गेटवे सेटअप करना होगा। शॉपिफाई पेमेंट्स भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको एक थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद ऑप्शन में रेजरपे, कैशफ्री और पेयू शामिल हैं। ये गेटवे यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट समेत सभी प्रमुख भारतीय पेमेंट मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। इसे सेटअप करने के लिए सेटिंग्स पेमेंट्स पर जाएं। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के तहत चूज़ अ प्रोवाइडर पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा गेटवे चुनें। आपको पहले सीधे उस गेटवे जैसे रेजरपे की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होगा। एक बार आपका अकाउंट अप्रूव हो जाने पर वे आपको API कीज़ देंगे जिन्हें आपको शॉपिफाई में दर्ज करना होगा। एक ज़रूरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए। जब आप रेजरपे या पेयू जैसे गेटवे का इस्तेमाल करती हैं तो वे अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं। इसके अलावा शॉपिफाई भी बेसिक प्लान पर हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 2% का अतिरिक्त शुल्क लेता है, क्योंकि आप उनका अपना पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। यह आपके मुनाफे का हिसाब लगाते समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैश ऑन डिलीवरी कोड। भारत में कोड अभी भी बहुत चलता है। इसे चालू करने से आपकी बिक्री काफ़ी बढ़ सकती है। पेमेंट्स सेटिंग्स में मैनुअल पेमेंट मेथड्स पर जाएं और ड्रॉप डाउन से कैश ऑन डिलीवरी COD चुनें और इसे एक्टिवेट करें। तीसरा, शिपिंग सेटअप। आखिरी ज़रूरी चीज़ है शिपिंग। आपको यह तय करना होगा कि आप प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगी और उसका कितना चार्ज लेंगी। सेटिंग्स शिपिंग एंड डिलीवरी पर जाएं। जनरल शिपिंग रेट्स के तहत मैनेज पर क्लिक करें। हम भारत के लिए डोमेस्टिक शिपिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने डोमेस्टिक शिपिंग जोन के भीतर एड रेट पर क्लिक करें। आपके पास कुछ ऑप्शन हैं। फ्लैट रेट, एक समान दर। आप हर ऑर्डर के लिए एक फिक्स्ड शिपिंग चार्ज लेती हैं, जैसे स्टैंडर्ड शिपिंग के लिए 60 रुपये। शिपिंग, मुफ्त शिपिंग। यह एक पावरफुल मार्केटिंग टूल है। आप सभी ऑर्डर पर मुफ्त शिपिंग दे सकती हैं या आप शर्तें सेट कर सकती हैं, जैसे ऐड कंडीशंस पर क्लिक करें, बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस चुनें और न्यूनतम मूल्य के रूप में 999 रुपये दर्ज करें। अब 999 रुपये से ज़्यादा के सभी ऑर्डर पर अपने आप मुफ्त शिपिंग लागू हो जाएगी। शुरुआत के लिए मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी की सलाह दूंगी। 1000 रुपये से कम के ऑर्डर के लिए 50 से 80 रुपये की एक फ्लैट दर और 1000 रुपये से ज़्यादा के ऑर्डर के लिए मुफ्त शिपिंग। यह सिंपल है और ग्राहकों के लिए समझने में आसान है। वाह, मुझे पता है ये थोड़ी ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन अब आपका स्टोर एक पूरा काम करने वाला बिजनेस है। आपके पास कानूनी सुरक्षा है, आप पेमेंट ले सकती हैं और आपके पास एक स्पष्ट शिपिंग स्ट्रैटेजी है। अब बस एक ही चीज़ बची है, अपने स्टोर को लॉन्च करना। सेक्शन 5, पैसे कमाना और लॉन्च, गो लाइव स्ट्रैटेजी। यह वो पल है जिसका हम सभी को इंतज़ार था। आपका स्टोर डिज़ाइन हो गया है, आपके प्रोडक्ट लिस्टेड हैं और आपकी सभी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर हो गई हैं। अब आपके स्टोर को दुनिया के सामने लाने
और अपनी पहली बिक्री करने का समय है। ड्रॉप शिपिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग। शायद आप सोच रही हों, मेरे पास बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, या मैं इन्वेंट्री खरीदने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। यहीं पर ड्रॉप शिपिंग काम आती है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां आप जो सामान बेचती हैं उसे स्टॉक में नहीं रखती। जब कोई ग्राहक ऑर्डर देता है तो आप उस ऑर्डर को एक सप्लायर को भेजती हैं जो सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट भेजता है। आपको प्रोडक्ट को संभालने या शिप करने की ज़रूरत नहीं है। ये शुरुआती लोगों के लिए एक बेहतरीन मॉडल है क्योंकि यह आपको बहुत कम शुरुआती निवेश के साथ हज़ारों प्रोडक्ट्स तक पहुंच देता है। शॉपिफाई ऐप स्टोर में डीएसर्स, जो एली एक्सप्रेस का पार्टनर है, या सीजे ड्रॉप शिपिंग जैसे कई ऐप्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग को आसान बनाते हैं। आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करके कुछ ही क्लिक में प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में इंपोर्ट कर सकती हैं। अंतिम प्री लॉन्च चेकलिस्ट। लॉन्च करने से पहले यह पक्का करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, एक फाइनल जांच करना ज़रूरी है। अपने स्टोर को ब्राउज़ करें। आपको एक ग्राहक की तरह सोचना है। होम पेज, कलेक्शन पेज और प्रोडक्ट पेज पर जाएं। क्या सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा आप चाहती हैं? मोबाइल पर जांचें। ज़्यादातर ग्राहक मोबाइल पर खरीदारी करते हैं, इसलिए यह पक्का करना ज़रूरी है कि आपका स्टोर छोटे स्क्रीन पर भी बहुत अच्छा दिखे। एक टेस्ट ऑर्डर दें। यह सबसे ज़रूरी कदम है। इसे प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप ₹1 का एक प्रोडक्ट बनाकर उसे खुद खरीदकर पूरी चेकआउट प्रक्रिया का टेस्ट कर सकती हैं। देखें कि क्या पेमेंट ठीक से काम करता है और कंफर्म करें कि आपको ऑन ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल मिलता है। इससे आपको किसी भी अप्रत्याशित समस्या को पकड़ने में मदद मिलेगी। बजट की जांच करें। लॉन्च करने से पहले अपने बजट को एक बार फिर देख लें। याद रखें, ₹20 प्रति महीने के प्रमोशनल ऑफर के बाद आपका शॉपिफाई प्लान, आपका डोमेन नेम जिसकी कीमत अलग होती है, कोई भी पेड ऐप्स और पेमेंट गेटवे की फीस, ये सब आपके महीने के खर्चे होंगे। लॉन्च, पासवर्ड हटाना। जब आप पहली बार अपना शॉपिफाई स्टोर बनाती हैं तो यह पासवर्ड से सुरक्षित होता है। जब आप लाइव होने के लिए तैयार हों तो आपको इस पासवर्ड को हटाना होगा। अपने शॉपिफाई एडमिन में ऑनलाइन स्टोर प्रेफरेंसेस पर जाएं। नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आप पासवर्ड प्रोटेक्शन सेक्शन न देख लें। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू विजिटर्स विद द पासवर्ड बॉक्स को अनचेक करें। सेव पर क्लिक करें और बस, आपका शॉपिफाई स्टोर अब लाइव है और दुनिया भर के ग्राहकों से ऑर्डर लेने के लिए तैयार है। बधाई हो, आपने यह कर दिखाया। आपने एक आइडिया को एक असली काम करने वाले ऑनलाइन स्टोर में बदल दिया है। अब आपके पास एक प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर है जो बिक्री के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपने सीखा कि कैसे साइन अप करें, एक सुंदर स्टोर डिज़ाइन करें, प्रोडक्ट जोड़ें, पेमेंट और शिपिंग सेट करें और आखिर में अपने स्टोर को लॉन्च करें। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपको इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। असली रोमांच अब शुरू होता है। अपने ब्रांड को बढ़ाना, अपने ग्राहकों से जुड़ना और अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखना। जो कुछ भी आपने आज सीखा है उस पर एक्शन लें। पहला कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। इससे मुझे आप जैसे और लोगों के लिए फ्री वैल्यूएबल कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। और अगर आपके कोई सवाल हैं, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हों, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस वीडियो में बताए गए सभी रिसोर्सेज और स्पेशल शॉपिफाई ऑफर के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी ई-कॉमर्स यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं डार्क वेब पर गया और मेरे होश उड़ीडीएच गए। मैंने इंटरनेट की उस अंधेरी दुनिया में कदम रखा जिसके बारे में सिर्फ सुना था। डार्क वेब। लोग कहते हैं वहाँ सब कुछ बिकता है, ड्रग्स, हथियार और यहाँ तक कि लोगों की जिंदगियाँ भी। मैं ये देखने गया था कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो मैंने वहाँ देखा उसने मेरे होश उड़ ढा दिए। इस वीडियो में मैं आपको अपनी उस यात्रा पर ले जा रहा हूँ, लेकिन एक चेतावनी के साथ। जो आप देखेंगे शायद उसे आप भुला नहीं पाएंगे।
ये इंटरनेट का वो कोना है जहां इंसानियत की हदें खत्म हो जाती हैं और जहां कानून की पहुंच बहुत मुश्किल हो जाती है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इंटरनेट की वो हकीकत है जिसे हमसे और आपसे छिपाकर रखा जाता है। तो चलिए मेरे साथ इंटरनेट की इस काली दुनिया के सफ़र पर। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से वापस आने के बाद आप इंटरनेट को शायद पहले की तरह कभी नहीं देख पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट का हम इस्तेमाल करते हैं वो असल में कितना बड़ा है? हम गूगल पर कुछ भी खोजते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, अमेज़न से शॉपिंग करते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरा इंटरनेट देख लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब कुछ, ये पूरी दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो एक अनुमान के मुताबिक पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 10% हिस्सा ही है। जी हाँ, बस इतना सा। बाकी का 90% से ज़्यादा हिस्सा हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। एक ऐसी अंधेरी और गहरी दुनिया जहां सर्च इंजन नहीं पहुंच सकते, जहां आपकी पहचान गुमनाम रहती है और जहां ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आपको उसी छिपे हुए हिस्से की हकीकत बताने वाला हूं। मैंने हिम्मत जुटाई और उस दुनिया में झांकने की कोशिश की, और जो मैंने देखा उसने मुझे हफ्तों तक बेचैन रखा। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं उन वेबसाइटों को बंद कर रहा था। यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि उस खतरे से सावधान करने के लिए है जो शायद आपके एक गलत क्लिक की दूरी पर मौजूद है। सेक्शन 1, इंटरनेट का हिमखंड, सरफेस, डीप और डार्क वेब क्या है? तो चलिए पहले ये समझते हैं कि यह सब है क्या। इंटरनेट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइसबर्ग यानी हिमखंड का उदाहरण। समुद्र में तैरते आइसबर्ग का हमें सिर्फ ऊपरी सिरा दिखाई देता है, जो कुल आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा होता है। बाकी का विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। हमारा इंटरनेट बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं सरफेस वेब, सरफेस वेब। यह वो इंटरनेट है जिसे आप और मैं हर रोज इस्तेमाल करते हैं। google.com, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़न, न्यूज़ वेबसाइट्स, ये सब सरफेस वेब का हिस्सा हैं। इन्हें गूगल या बिंग जैसा कोई भी सर्च इंजन आसानी से ढूंढ सकता है और आप क्रोम या सफारी जैसे किसी भी आम ब्राउज़र से इन तक पहुंच सकते हैं। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो सबके लिए खुला है। अब बात करते हैं आइसबर्ग के उस विशाल हिस्से की जो पानी के नीचे है। इस हिस्से को कहते हैं डीप वेब, डीप वेब। इसका नाम सुनकर डरने की ज़रूरत नहीं है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां तक सर्च इंजन नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह अवैध नहीं है। असल में हम सब जाने अनजाने में रोज़ डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉग इन करते हैं तो आपका इनबॉक्स डीप वेब पर होता है। जब आप अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं तो वो जानकारी डीप वेब पर होती है। किसी कंपनी का इंटरनल नेटवर्क, सरकारी डेटाबेस, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, आपके गूगल ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स में रखी फाइलें, यह सब डीप वेब का हिस्सा है। ऐसे डीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जानकारी पब्लिक नहीं है। इसे एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड या किसी तरह के ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई गूगल पर आपका नाम सर्च करे और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उसे मिल जाएं, है ना? इसीलिए डीप वेब ज़रूरी है। यह हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा को बनाए रखता है। एक अनुमान के मुताबिक इंटरनेट का लगभग 90 से 95% हिस्सा इसी डीप वेब से बना है। लेकिन इसी गहरे समुद्र में, आइसबर्ग के सबसे निचले और अंधेरे हिस्से में एक और दुनिया है, और उसे ही कहते हैं डार्क वेब। डार्क वेब डीप वेब का ही एक बहुत छोटा लेकिन सबसे बदनाम हिस्सा है। ये इंटरनेट का वो अंडरवर्ल्ड है जिसे जानबूझकर छिपाया गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप गूगल क्रोम या सफारी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए टॉर ब्राउज़र जैसे खास ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ जाती है। डार्क वेब पर वेबसाइटों के पते .com या .in में ख़त्म नहीं होते, बल्कि .onion में ख़त्म होते हैं। हालांकि I2P जैसे दूसरे डार्कनेट भी मौजूद हैं जिनके एड्रेस अलग होते हैं। ये वो जगह है जिसे पूरी तरह गुमनाम रहने के लिए बनाया गया था। यहाँ आपकी असली पहचान, आपका IP एड्रेस, आपकी लोकेशन, सब कुछ छिपा दिया जाता है। और इसी गुमनामी का फ़ायदा उठाकर अपराधी और हैकर्स यहाँ अपनी काली दुनिया चलाते हैं। ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ वो चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं करना चाहेंगे। ड्रग्स, हथियार,
चोरी किया हुआ क्रेडिट कार्ड डेटा, नकली पासपोर्ट, हैकिंग सर्विसेज, सब कुछ। ये वो जगह है जिसकी कहानियां सुनकर रोंगटे खडीडी ऐसे हो जाते हैं, और मैं आपको सच बताने के लिए उसी अंधेरे में उतरा था। सेक्शन 2, गुमनामी का दरवाज़ा, टॉर ब्राउज़र और प्याज की परतें। डार्क वेब की दुनिया में जाने से पहले उसके दरवाजे को समझना होगा, और वो दरवाज़ा है टॉर ब्राउज़र। टॉर का पूरा नाम है द ओनियन राउटर, और इसका नाम अनियन यानी प्याज क्यों है, ये समझना बद्दा दिलचस्प है। सोचिए कि आपको एक कैश वास्ते भेजना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि यह कागजात किसने और कहाँ से भेजा है। आप उस कागजात को एक लिफाफे में डालेंगे और किसी दूसरे शहर भेज देंगे। वहाँ कोई उस लिफाफे को खोलेगा, उसके अंदर से आपका कागजात निकालेगा, उसे एक नए लिफाफे में डालेगा और एक और अलग शहर भेज देगा। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाएगी। जब कागजात अपनी मंजिल पर पहुंचेगा तो किसी के लिए भी यह जानना लगभग नामुमकिन होगा कि यह सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था। टॉर ब्राउज़र बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जब आप टॉर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इंटरनेट कनेक्शन सीधा वेबसाइट तक नहीं जाता। टॉर आपके कनेक्शन को एनक्रिप्ट करता है, यानी उसे एक कोड में बदल देता है, और फिर उसे दुनिया भर में फैले हज़ारों वॉलंटियर सर्वरों के नेटवर्क के जरिए घुमाता है। आपका डेटा एक सर्वर से दूसरे, दूसरे से तीसरे और ऐसे ही कई सर्वरों से गुजरता है। हर सर्वर पर एन्क्रिप्शन की एक और परत रह जाती है, ठीक प्याज की परतों की तरह। इसका नतीजा ये होता है कि जब आपका कनेक्शन आखिरकार वेबसाइट तक पहुंचता है तो उसे ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि यह यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी। आपकी असली पहचान और लोकेशन इन्हीं परतों के नीचे कहीं छिप जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस तकनीक को किसी अपराधी ने नहीं बनाया था। इसे 1990 के दशक के मध्य में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने विकसित करना शुरू किया था। इसका मकसद अमेरिकी खुफिया एजेंटों को ऑनलाइन गुमनाम रहकर सुरक्षित तरीके से बातचीत करने में मदद करना था। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि अगर इस नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी जासूस करेंगे तो कोई भी आसानी से पहचान लेगा कि इस नेटवर्क पर मौजूद हर व्यक्ति एक जासूस है। असली गुमनामी तभी मिलती है जब आप भीड़ अर्ज में खो जाएं। इसलिए 2002 से 2003 के आसपास उन्होंने टॉर के कोड को पब्लिक के लिए जारी कर दिया। मकसद नेक था। वे चाहते थे कि पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और आम लोग जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकारें इंटरनेट पर कड़ी निगरानी रखती हैं, वे बिना डरे अपनी बात कह सकें। और आज भी टॉर का इस्तेमाल बहुत से अच्छे कामों के लिए होता है, लेकिन हर शक्तिशाली तकनीक की तरह इसका भी गलत इस्तेमाल शुरू हो गया। अपराधियों ने इस गुमनामी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और इंटरनेट के अंधेरे कोने में अपनी एक अलग दुनिया बना ली, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। ज़्यादातर देशों में टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना या इस्तेमाल करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कुछ तानाशाही देशों में इस पर पाबंदी है या इसकी निगरानी की जाती है, और इसका इस्तेमाल कर अवैध गतिविधियों में शामिल होना हर जगह एक संगीन अपराध है। सेक्शन 3, मेरी डार्क वेब की यात्रा। वो खौफनाक रात जब मैंने पहली बार टॉर ब्राउज़र खोला तो स्क्रीन पर एक अजीब सा एहसास था। ये गूगल क्रोम जैसा रंगीन नहीं था, बल्कि बहुत ही बेसिक और सिंपल था। मुझे पता था कि मैं अब सरफेस वेब पर नहीं हूँ, बल्कि एक ऐसे दरवाजे पर खड़ीदा हूँ जिसके पार एक दूसरी ही दुनिया है। मैंने इंटरनेट पर कुछ डार्क वेब डायरेक्टरीज के लिंक ढूंढे। ये विकिपीडिया की तरह होती हैं, लेकिन इनमें .onion वेबसाइट्स की लिस्ट होती है। मैंने एक लिंक पर क्लिक किया। पेज धीरे धीरे लोड हो रहा था, और जो पेज खुला उसने मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। अवैध बाजार, द इलीगल मार्केट प्लेसेस। यह एक ऑनलाइन बाजार था, अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसा, लेकिन यहाँ जो सामान बिक रहा था वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। बाईं तरफ कैटेगरीज थीं: ड्रग्स, हथियार, मैलवेयर, नकली दस्तावेज, चोरी का डेटा। मैंने कांपते हुए हाथों से ड्रग्स कैटेगरी पर क्लिक किया। एक नया पेज खुला जिस पर हज़ारों लिस्टिंग थीं: कोकेन, हेरोइन, LSD। हर तरह के नशीले पदार्थ बिक रहे थे, तस्वीरों और कीमतों के साथ। विक्रेता अपनी रेटिंग दिखा रहे थे और ख़रीदार रिव्यू लिख रहे थे: बहुत अच्छा प्रोडक्ट, डिलीवरी टाइम पर हुई।
यह सब इतना सामान्य लग रहा था कि और भी ज्यादा डरावना था। फिर मैंने हथियार सेक्शन देखा। पिस्टल, राइफलें, ऑटोमेटिक गनें, यहां तक कि बम बनाने के सामान की भी लिस्टिंग थी। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था कि कोई इतनी आसानी से ऑनलाइन हथियार कैसे बेच सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सेक्शन था चोरी का डेटा और सेवाएं। यहां लोगों की जिंदगियां बिक रही थीं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लोगों के चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड नंबर, उनके नाम और सीवीवी कोड के साथ महज कुछ 100 रुपए में बिक रहे थे। सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट्स, लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल अकाउंट्स के पासवर्ड थोक में बिक रहे थे। सोचिए, आपकी पूरी निजी जिंदगी किसी और के हाथ में। फुल्स, पूरी पहचान। यहाँ फुल्स नाम के पैकेज बिक रहे थे, जिसका मतलब था फुल इंफॉर्मेशन। इनमें किसी व्यक्ति की पूरी पहचान थी, नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी की पूरी डिजिटल पहचान कुछ हजार रुपयों में खरीदी जा सकती है। हैकर फॉर हायर, हैकर फॉर हायर। यहां आप किसी को भी हैक करने के लिए हैकर किराए पर ले सकते थे। किसी का ईमेल हैक करवाना हो या वेबसाइट डाउन करवानी हो, हर काम के लिए एक कीमत तय थी। ये सब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह असली था। लोगों की मेहनत की कमाई, उनकी निजी जिंदगी, सब कुछ यहां एक सामान की तरह बिक रहा था। और पेमेंट का तरीका क्रिप्टोकरेंसी, जैसे बिटकॉइन। कई लोग मानते हैं कि इसे ट्रेस करना नामुमकिन है, लेकिन यह एक भूल है। इसे ट्रेस करना मुश्किल जरूर है, पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां कई बार अपराधियों को पकड़ DDH चुकी हैं। गुमनामी के इस बाजार में सब कुछ गुमनाम था। सिल्क रोड की कहानी, डार्क वेब का अमेजन, डार्क वेब के इन बाजारों की बात हो और सिल्क रोड का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। सिल्क रोड डार्क वेब का सबसे पहला और सबसे बड़ा अवैध बाजार था। 2011 में रॉस उल्ब्रिcht नाम के एक 29 साल के डडिचके ने इसकी शुरुआत की। उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां दुनिया भर के लोग गुमनाम रहकर ड्रग्स खरीद और बेच सकते थे। उसने अपना ऑनलाइन नाम रखा ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स। देखते ही देखते सिल्क रोड एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया। सिर्फ 2 सालों में इस वेबसाइट पर करीब $1.2 बिलियन की बिक्री हुई। रॉस हर ट्रांजैक्शन से कमीशन लेकर लाखों डॉलर कमा रहा था। लेकिन FBI सालों तक ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स को पकड़ बेचने की कोशिश करती रही। यह मुश्किल था क्योंकि रॉस स्टोर की गुमनामी के पीछे छिपा था, पर उसने कुछ छोटी छोटी गलतियां की। सिल्क रोड की शुरुआत में उसने कुछ ऑनलाइन फोरम पर अपनी वेबसाइट का प्रचार करने के लिए अल्टॉइड नाम का एक यूजरनेम इस्तेमाल किया था। सालों बाद जांचकर्ताओं ने उसी यूजरनेम से जुद्दा एक पुराना पोस्ट खोज निकाला, जिसमें रॉस ने मदद मांगते हुए अपना असली ईमेल एड्रेस दे दिया था। यह छोटी सी गलती FBI के लिए एक बड़ा सुराग बन गई। उन्होंने रॉस का पता लगाया और 1 अक्टूबर 2013 को उसे सैन फ्रांसिस्को की एक लाइब्रेरी में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वो उस वक्त अपने लैपटॉप पर सिल्क रोड की वेबसाइट मैनेज कर रहा था। रॉस उल्ब्रिcht को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिल्क रोड की कहानी यह साबित करती है कि डार्क वेब पर गुमनामी एक धोखा है। आप कानून से हमेशा के लिए नहीं छिप सकते। रेड रूम्स की हकीकत और खौफनाक किंवदंतियां। जब मैं सिल्क रोड और उन बाजारों को देखकर ही दहल गया था, तब मेरी नज़र कुछ ऐसे लिंक्स पर पड़ी थी जहां और भी डरावनी बातें हो रही थीं। मैंने रेड रूम्स के बारे में सुना था। ये डार्क वेब की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है। कहा जाता है कि रेड रूम्स ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइटें हैं जहां लोग पैसे देकर किसी इंसान को टॉर्चर होते या मरते हुए लाइव देखते हैं। यह सुनने में ही इतना भयानक लगता है कि यकीन करना मुश्किल है। मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की। मुझे कुछ वेबसाइटें मिलीं जो रेड रूम का दावा कर रही थीं, जिन पर काउंटडाउन चल रहे थे और शो देखने के लिए बिटकॉइन में पेमेंट मांगी जा रही थी। मेरा दिल सहम गया। क्या यह सच में होता है? लेकिन जितनी मैंने रिसर्च की, उससे एक बात साफ हुई। आज तक किसी भी असली रेड रूम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब स्कैम हैं,
जो लोगों के डर का फायदा उठाकर उनसे पैसे ठगने के लिए बनाए गए हैं। टॉर नेटवर्क की धीमी गति के कारण हाई क्वालिटी वीडियो को लाइव स्ट्रीम करना लगभग असंभव है। लेकिन भले ही रेड रूम्स एक मिथक हों, इसका मतलब यह नहीं है कि डार्क वेब पर भयानक कंटेंट मौजूद नहीं है। ऐसी कई सच्ची घटनाएं हैं जो किसी रेड रूम से कम डरावनी नहीं, जहां अपराधियों ने बच्चों के शोषण के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया। मुझे ऐसे फोरम भी मिले जहां हत्या की सुपारी और इंसानी अंगों की तस्करी जैसी बातों पर चर्चा हो रही थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर भी स्कैम ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इन विषयों पर बात होना ही इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। ये सब देखकर मेरा मन घृणा से भर गया। मैंने महसूस किया कि मैं एक ऐसी दलदल में हूं जिसमें जितना अंदर जाऊं उतना ही दम घुटता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में वही वेबसाइटें और वही खौफनाक बातें घूम रही थीं। दोस्तों, मैं यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस खतरे को समझ सकें। अगर आपको यह जानकारी ज़रूरी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही छुपे हुए खतरों से आपको सावधान करता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी गहराई से रिसर्च करने की हिम्मत देता है। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन खतरों से बचने के तरीकों पर एक अलग वीडियो चाहते हैं। मेरी उस रात की यात्रा ने मुझे एक बात तो सिखा दी। डार्क वेब पर गुमनामी एक छलावा है। लोग सोचते हैं कि टॉर ब्राउज़र इस्तेमाल करके वे अदृश्य हो गए हैं, पर यह सबसे बड़ा झूठ है। जैसा सिल्क रोड के केस में हुआ, कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगातार इन नेटवर्कों की निगरानी कर रही हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र खतरा नहीं है। डार्क वेब पर कदम रखना अपने आप में बहुत जोखिम भरा है। 1. मैलवेयर और वायरस का हमला। डार्क वेब खतरनाक सॉफ्टवेयर से भरा पीडीडीएच है। हैकर्स जानबूझकर वेबसाइटों और फाइलों में वायरस छिपा कर रखते हैं। एक गलत क्लिक और आपके कंप्यूटर या फोन का पूरा कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता है। वे आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं और आपके पासवर्ड तक चुरा सकते हैं। 2. स्कैम और धोखाधड़ी। डार्क वेब स्कैमर्स से भरा है। जैसा मैंने रेड रूम्स के बारे में बताया, ज्यादातर सनसनीखेज दावे सिर्फ पैसे ठगने के लिए होते हैं। लोग सस्ते सामान के लालच में पेमेंट कर देते हैं और उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। यहां कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। 3. सरकारी निगरानी का खतरा। यह मत सोचिए कि आप पर किसी की नजर नहीं। FBI, इंटरपोल और दुनिया भर की एजेंसियां डार्क वेब पर कड़ी नजर रखती हैं। हाल के सालों में सिल्क रोड के बाद अल्फाबे और नेमेसिस जैसे कई बड़े बाजारों को बंद किया गया है। अगर आप सिर्फ जिज्ञासा में भी किसी अवैध वेबसाइट पर जाते हैं, तो आप एजेंसियों की नज़र में आ सकते हैं। 4. पहचान का खुलासा। टॉर नेटवर्क 100% सुरक्षित नहीं है। इसमें भी कमजोरियां होती हैं और सरकारें और हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा उठाकर आपकी असली पहचान का पता लगा सकते हैं। गुमनामी एक परत है, कोई लोहे की दीवार नहीं। 5. मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव। यह एक ऐसा खतरा है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। डार्क वेब पर मौजूद हिंसक और परेशान करने वाला कंटेंट आपके दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। ऐसी चीजें देखने के बाद लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नींद न आने की समस्या हो सकती है। ये तस्वीरें आपके दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। उस रात के बाद मैंने अपने कंप्यूटर से टॉर ब्राउज़र को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया। मुझे समझ आ गया था कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। जिज्ञासा अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी सुरक्षा और मानसिक शांति की कीमत पर नहीं। तो मेरी इस यात्रा का निचोड़ DDH क्या है? डार्क वेब इंटरनेट की एक सच्चाई है, एक ऐसी काली दुनिया जो गुमनामी के अंधेरे में फल फूल रही है। यहाँ कुछ अच्छे काम भी होते हैं, जैसे पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा अपराध और धोखाधड़ी से भरा है। यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद आपको सिर्फ डरावनी कहानियाँ सुनाना नहीं था। मेरा उद्देश्य आपको उस खतरे से सावधान करना है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मैं चाहता हूँ कि आप और ख़ासकर मेरे युवा दोस्त इस बात को समझें कि डार्क वेब कोई एडवेंचर की जगह नहीं है, यह एक दलदल है। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, डार्क वेब से दूर रहें,
सिर्फ जिज्ञासा में भी वहां जाने की कोशिश न करें। आपको नहीं पता कि कौन सा लिंक आपको किस मुसीबत में डाल सकता है, या जो चीज़ें आप वहां देखेंगे वो आपके दिमाग पर क्या असर डालेंगी। इंटरनेट एक अद्भुत टूल है। इसका इस्तेमाल सीखने, बनाने और जुटाने के लिए करें, लेकिन इसके अंधेरे कोनों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। एक अच्छा एंटीवायरस इस्तेमाल करें, अपने पासवर्ड मजबूत रखें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 2 बार सोचें। याद रखिए, कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है। अपनी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखें और इस अंधेरी दुनिया की परछाई से भी दूर रहें। सुरक्षित रहें।